آپ کی طرف دیکھتا ہے تو آپ کے چہرے پہ نا امیدی نہیں آنی چاہیے، کیونکہ جب آپ نا امید ہوں گے تو اس کے لیے جینا زیادہ مشکل ہو جائے گا۔ تو میں آپ کو یقین دلاتی ہوں کہ میرا پورٹ فولیو آپ کے عزت وقار، تشخص اور شناخت کو مضبوط کرے گا، اور انشاءاللہ پنجاب میں جو میرے بس میں ہوگا وہ اس دفتر تک آپ کی رسائی اسی طرح ہوگی جیسے آپ سب وہاں وزیر ہیں، اور آپ ہی اس سٹرکچر کے اندر بیٹھ کے میری رہنمائی بھی کریں، میری مدد بھی کریں، اور ہم سب مل کے امیج بلڈنگ کریں پنجاب گورنمنٹ کے حوالے سے، جو ایک پرسپشن بن گئی ہے کہ انہوں نے 2 سال میں کچھ نہیں کیا، جبکہ یہ ریالٹی اس سے برعکس ہے۔ اور ریالٹی یہ ہے کہ جو کچھ 2 سال میں پاکستان تحریک انصاف کی حکومت نے کیا ہے وہ ریفارمز ایجنڈا جو نظام کو بدلنے کے لیے بنیاد 2 سالوں میں رکھی گئی ہے، ایشو صرف یہ رہا کہ ہم شاید کمیونیکیٹ نہیں کر پائے۔ آپ نے جس یکجہتی سے کم وقت میں حافظ آباد کا جلسہ کر کے ہمیں سب کو آکسیجن فراہم کی ہے، میرے سمیت بہت سارے لوگ ورکنگ ڈے پہ جلسہ کرنے کے خلاف تھے، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ حافظ آباد ایک ایگریکلچر ہب ہے، اور فصل کی کٹائی اور پھر بوائی کا سیزن تھا تو ٹائمنگز ٹھیک نہیں تھے، اور ایسی صورتحال میں جب ہمارا مخالف آستینیں چڑھا کے ہمیں للکار رہا ہو تو ہم 10 لاکھ اور 11 لاکھ والی آبادی کے ڈسٹرکٹ میں جا کے جلسہ کریں، پنجاب میں جو سب سے کم آبادی والی ڈسٹرکٹ ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ ہمارا تو ڈبل سے زیادہ لوگ اس جلسہ گاہ سے باہر تھے۔ تو یہ اگر کسی مین روڈ پہ کسی مین سٹی میں جب ہم کرتے یہ شو آف پاور تو ہمارے مخالفین کے لیے شاید لاہور کا جلسہ وہ کینسل کرتے، ان کو سمجھ آ جاتی کہ سینٹرل پنجاب والے جو ہیں وہ ہر جگہ لاہور بنا لیتے ہیں اور وہ عمران خان کی طاقت ہیں۔ بھٹی صاحب آپ نے مشکل حالات میں ایک اچھی بیٹنگ کی ہے اور اچھی اننگز کھیلی ہے، ہم آپ کو مبارکباد پیش کرتے ہیں، اور یہ ٹیم ورک ہے۔ چودھری اعجاز صاحب کی قیادت میں ہماری سینٹرل پنجاب کی ٹیم نے اچھا کھیلا ہے اور بر وقت کھیلا ہے، اور آپ کی ساری جو شاٹس ہیں وہ باؤنڈری پہ گئی ہیں، تو اب اگلی ہمیں جو دسمبر میں شرپسند عناصر لاہور کا امن تباہ کرنے آ رہے ہیں، پلان کر رہے ہیں، ان کے لیے بھی الرٹ رہنا ہے۔ آج میں صرف آج کے اس پروگرام سے فائدہ اٹھاتے ہوئے حکومت پنجاب نے رحمت للعالمین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں شان مصطفیٰ کا ہفتہ منانے کا فیصلہ کیا ہے، اور آج ہمارا یہ چل رہا تھا کیبنٹ میٹنگ کے اندر کہ ہمیں ایک طرف کرونا کا چیلنج ہے اور ہم یہ ایس او پیز بار بار میڈیا میں کمیونیکیٹ کر رہے ہیں کہ احتیاط کریں، اور سمارٹ لاک ڈاؤن کی طرف ہم جا رہے ہیں، اور بہت سارے علاقوں میں مارکیٹس میں شادی ہال میں وہ پالیسی امپلیمنٹ ہونے جا رہی ہے۔ دوسری طرف ہمارے جو ہفتہ ہے شان مصطفیٰ ہے اس کو منانے کے لیے ہمیں ایک ہوم ورک کی ضرورت ہے۔ تو میں آپ سے اپیل کرتی ہوں کہ ہماری جماعت جو ہے
जब आप इकट्ठे हो के कोई एजेंडा लेके आगे चलते हैं तो इंशाल्लाह आपकी ताकत से सोमनाथ के मंदिर जो है वो गिर जाते हैं। तो लाहौर का किला समझने वाले जो हमारे नादान सियासी बोने हैं, उनको आपने जवाब देना है। चौधरी इजाज साहब की क़यादत में इंशाल्लाह इस हफ्ते के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हरावल दस्ते का किरदार अदा करती नज़र आएगी और हर प्रोग्राम में पीटीआई की तंजीम ही मेज़बान होगी, हुकूमत वहाँ मेहमान बन के आएगी और ये आपकी ज़ेर सरपरस्ती वो प्रोग्राम होंगे। उन प्रोग्रामों का पार्टी सेक्रेटेरिएट में हम बाकायदा एक चार्ट अवेज़ा करेंगे और उनकी जो गेस्ट की लिस्ट है वो चौधरी साहब और उनकी टीम हमें देगी, ताकि ब्यूरोक्रेसी उस वक्त हावी होती है जब लीडरशिप जो है वो कमज़ोर होती है। जब लीडरशिप मजबूत होती है तो ब्यूरोक्रेसी की ज़रूरत नहीं है कि वो खड़ी हो सके। तो हमें मिनिस्ट्री इंफॉर्मेशन के प्लेटफॉर्म से जो भी इनिशिएटिव लेने हैं वो पार्टी लीड करेगी, ब्यूरोक्रेसी उसको फॉलो करेगी इंशाल्लाह। तो मैं एक दफ़ा फिर आप सबको मुबारकबाद देती हूँ और आपको यकीन दिलाती हूँ कि उस्मान बुज़दार साहब और पंजाब की कैबिनेट हम सब आपके मरूने मिन्नत हैं, पार्टी की लीडरशिप के मरूने मिन्नत है। क्योंकि यहाँ अगर आज हमने ये झंडियों में बैठ के आपके हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ ना किया तो कारकुन ही किसी जमात का असासा है और कारकुन को बाईपास करके जमातें फिर वो मैंडेट लेने का हसीन ख्वाब जो है वो पूरा नहीं कर सकती। तो इंशाल्लाह चौधरी साहब आप कैबिनेट के मेंबरान को यहाँ गाए बगाए बुलाया करें, उनको कहें कि अपनी पॉलिसीज़ पार्टी को एक्सप्लेन करें, जो उनकी परफॉर्मेंस है वो पार्टी से शेयर करें। और 2 साल जो हमारी कारकर्दगी है, हर मिनिस्टर को मैं साथ बिठा के मीडिया के सामने लाने जा रही हूँ और उन अपने मिनिस्टर हजरात को जो जिनकी अभी तक मीडिया में नकाब कुशाई नहीं हुई और उन्होंने अपने आप को जितने भी अच्छे काम किए हैं वो अपने सीने में दफन किए हुए हैं। तो मैं उनको गुजारिश करने जा रही हूँ कि वो मीडिया के सामने आए, क्योंकि दोनों हाथ से काम करने का हमने 2 साल देख लिया कि उसका रिज़ल्ट आवाम के अंदर नेगेटिव परसेप्शन, क्योंकि आपकी अपनी जमात को नहीं पता कि आपने क्या किया है। तो पहले तो इनको कन्विंस करें जिन्होंने दूसरों को कन्विंस करना है। तो जो जमात ही कन्विंस नहीं है कि आपकी परफॉर्मेंस क्या है तो जमात आवाम को कैसे कन्विंस करेगी। लिहाजा अगले हफ्ते से तमाम मिनिस्टर्स जो हैं वो आएंगे, बैठेंगे, मीडिया से शेयर करेंगे अपनी परफॉर्मेंस और जो उनका चार्टर ऑफ एजेंडा और परफॉर्मेंस डिटेल्स होंगी वो हम पार्टी को भी भेजेंगे, ताकि यहाँ पार्टी के सेक्रेटेरिएट में हर मिनिस्ट्री की यहाँ प्रोफाइल पड़ी हो और लोग जब आपसे सवाल करें तो आप जवाब दे सकें कि ये देखें इस हुकूमत ने लीगल रिफॉर्म्स क्या की हैं, हेल्थ रिफॉर्म्स क्या की हैं, एजुकेशन रिफॉर्म्स क्या की हैं, पॉलिटिकल रिफॉर्म्स क्या की हैं और इकनॉमिक रिफॉर्म्स क्या की हैं। और अल्टीमेटली अब उन सब का समर आवाम को देने का वक्त आ गया है। ये जो आओ बका और ये सियासी यतीमों का शोर आपको सुनाई दे रहा है, आपको पता है कि जब कोई दिया बुझने लगता है तो आखिर में उसकी रोशनी बढ़ती है, तो ये वो टिमटमाता है और रोशनी ज़्यादा होती है उसकी। तो ये नून लीग का और अपोजिशन का जो दिया इस वक्त जलसों में आपको धाड़ते चिंगाड़ते नज़र आ रहे हैं, ये इंशाल्लाह इनकी ज़ुबानें भी बंद होने जा रही हैं और ख़ुद भी अपने स्याह करतूतों की वजह से अपनी असली जगह पहुंचने वाले हैं। बहुत शुक्रिया आप सबका। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पाइंदाबाद।
सेंट्रल पंजाब तंजीम जिंदाबाद। बहुत शुक्रिया। अभी बगैर किसी तमहीद के जी आपकी भरपूर तालियों में कासिम खान सूरी, डिप्टी स्पीकर नेशनल असेंबली की। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं अपने हाफिजाबाद की तमाम जो यहाँ पर हाफिजाबाद के हमारे तमाम ओहदेदार आए हुए हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, और गुजरांवाला डिवीज़न के तमाम ओहदेदारान आए हुए हैं, जिन्हें हमारे जो सदर हैं रीजन के चौधरी इजाज साहब और उनकी टीम ने आपको मदऊ किया है। तो सबसे पहले तो आप तमाम को मैं कामयाब जलसे पर मुबारकबाद पेश करता हूँ। और जिस तरह आपने जलसा करके दिखाया और हमारी इंफॉर्मेशन की जो सूबाई मिनिस्टर हैं फिरदौस आशिक अवान साहिबा ने जिस तरह बताया कि उस ज़िले की आबादी भी कम और जो सीज़न चल रहा था वो किसानों का बुआई का और कटाई का सीज़न था, उस मौके पर भी आपने जितना शानदार जलसा करके दिखाया, तो मैं समझता हूँ कि ये एक बहुत बड़ा मैसेज है अपोजिशन के लिए, जो समझ रही थी कि लोग इस हुकूमत के खिलाफ निकल रहे हैं। आपने दिखाया कि हुकूमत के हक में लोग निकले हैं, और लोगों ने जो वोट दिया था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, इंसाफ के लिए, करप्शन के खात्मे के लिए, तो लोगों को उम्मीद है और लोगों को हौसला है कि ये हुकूमत ही वो काम करेगी जो 70 सालों में पाकिस्तान में किसी ने नहीं किया। यहाँ पर बहुत सी बातें हुई, 2-2.5 साल की कारकर्दगी की बातें हुई, तो मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि जिन हालात में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मरकज़ में और सूबों में हुकूमत बनी, इससे पहले भी जब 2013 में खैबर पख्तूनख्वा में हमारी हुकूमत बनी थी, तो आप यकीन करें 2 सालों तक यही जो आज आवाज़ें उठ रही हैं पंजाब में, यही सिलसिला था कि खैबर पख्तूनख्वा में जो कर रहे हो वो नज़र नहीं आ रहा, पता नहीं चल रहा लोगों को। लेकिन जो हमारे वहाँ के वज़ीर आला थे परवेज़ खटक साहब, वो हमेशा कहते थे कि नहीं बिल्कुल सही जा रहा है, और खान साहब को भी कहते थे कि मैं आपको दिखाऊंगा तब्दील करके खैबर पख्तूनख्वा। और पंजाब में या बलूचिस्तान जहाँ पे मैं रहता था, वहाँ तक मीडिया के थ्रू कोई बातचीत नहीं आती थी, और हम परेशान होते थे कि भाई खैबर पख्तूनख्वा में अगर हमारी परफॉर्मेंस अच्छी रही तो फिर हम मरकज़ में भी आएंगे, पंजाब में भी आएंगे और दूसरे सूबों में भी आएंगे। आप यकीन करें जो रिफॉर्म्स में जो काम हुआ, 5 साल के बाद तारीख बदली खैबर पख्तूनख्वा की, जो बिल्कुल कम मेजॉरिटी के साथ हमने 2013 से 18 हुकूमत की, 1/3 मेजॉरिटी से हम वो इलेक्शन जीते। और आपको जो सबसे बड़ा फ़र्क है जो हम पंजाब में जो सफ़र कर रहे हैं, वो मैं आपको छोटी सी एक मिसाल दूं कि खैबर पख्तूनख्वा के अंदर आज तक 5 साल से ज़्यादा किसी सियासी जमात ने वहाँ पे हुकूमत नहीं बनाई। MMA आया, 5 साल का दौर गुजारा, वहाँ पर पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी, ANP की हुकूमत आई, 5-5 साल का पीरियड गुजारा। तो वो जो ब्यूरोक्रेसी थी वो 5 साल तक एक हुकूमत ने डील की, वहाँ पर वो जड़ें मजबूत नहीं हुई सियासी जमातों की उस ब्यूरोक्रेसी के अंदर। आप जिस सूबे से ताल्लुक़ रखते हो वहाँ पे 30 साल से एक सियासी जमात की हुकूमत है, ब्यूरोक्रेसी में 30 साल की जड़ें हैं उनमें। आज जो प्रॉब्लम आता है, जो 30 साल पहले एक सरकारी मुलाजिम लगा है, जो आज सिपाही लगा था वो आज DSP SP है। तो यहाँ के हालात चेंज है, आपको ये सोचना पड़ेगा। आज जब बार बार यहाँ पे तब्दील किए जाते हैं तो उसका मकसद ही और मतलब ही ये है कि वो सियासी हमदर्दियाँ उसी जमात के साथ हैं जिस दौर में वो लगे हुए हैं। और ये बहुत बड़ा सरप्राइज है उनके लिए कि 30 साल के बाद एक जमात आई है, वो तो उन्होंने तो अपना किबला काबा रुख उसी जमात की तरफ किया हुआ था ब्यूरोक्रेसी ने। तो अब ये जो 2 साल का अरसा गुजरा है, तो उन्हें भी समझ में आ रही है इमरान खान की कि ये वो शख्स है जो फैसला करता है, कभी पीछे नहीं हटता और अपने मकसद में इतना मगन हो जाता है, और उसके साथी इतने जज्बाती हैं उसके साथी, और इतने मुखलिस हैं कि वो मकसद
नामुमकिन को भी अल्लाह ताला की मदद से वो मुमकिन हो जाता है। तो इंशाअल्लाह मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि आपका ये सूबा जो 65% है आबादी का, इंशाअल्लाह वहाँ पे आपको असर आना शुरू हो जाएगा। सबसे बड़ी चीज़ आपको जो बताऊँ, आपके सूबे में जो इंसाफ हेल्थ कार्ड का दिया जाना है हर तबके को, ये एक बहुत बड़ा चेंज है। हर गरीब आदमी वो सरकारी अस्पताल में भी, प्राइवेट अस्पताल में भी, चाहे वो हाफिजाबाद से लाहौर आएगा या किसी बड़े शहर में जाएगा, उसको इलाज 10 लाख रुपए का वो हर अस्पताल में करा सकेगा। ये एक बहुत बड़ी जो है वो आपने इस हुकूमत का एक चीज़ है जो गरीबों के लिए, आम आदमी के लिए आपने एक सहूलत दे दी है सेहत की। तो मैं समझता हूँ कि एक तालीमी निसाब की तरफ भी पाकिस्तान जा रहा है। इंशाअल्लाह 2021 का जो हमारा नया साल शुरू होगा, उसमें पूरी कोशिश है कि पूरे पाकिस्तान में तबकाती निज़ाम को ख़त्म करके एक तालीमी निसाब की तरफ आया जाए। तो इंशाअल्लाह उस तरफ भी कोशिश हो रही है। आपको बताता चलूं, कौमी असम्बली में जब फैटफ के बिल की तरफ हम थे, हम पूरी रात नेगोशिएशन करते रहे अपनी अपोजिशन की जमातों से। और आप सबको पता है जो हुकूमत की तरफ से जो लोग उनके साथ बातचीत कर रहे थे, वो तमाम शराइत उनकी आप लोगों ने देखी, जो वो क्या थी, वो सिर्फ और सिर्फ अपने लिए रिलीफ था, अवाम के लिए कुछ भी नहीं था। अपनी करप्शन बचाने के लिए वो नैब के केसेस ख़त्म करने की डिमांड्स थी, अवाम के लिए कुछ भी नहीं था। अल्लाह ताला का शुक्र है कि कौमी असम्बली में हमने वो फैटफ का बिल मुश्तरका इजलास बुला के वो पास कराया। आपने देखा कि जो फैटफ का इजलास हुआ है उसमें सराहा गया पाकिस्तान को। 27 में से 21 जो हम पर लाजिम था कि आपने प्रोग्रेस देनी है, वो चीज़ें कानून का हिस्सा बनानी है, वो हमने बना ली हैं। मैं आपको बताता चलूं कि अभी जो इक्तिसाद की जो सूरत हाल है वो बहुत ही खुश आइंद है। पाकिस्तान में 17 साल के बाद आपका करंट डेफिसिट जो है वो पॉजिटिव हुआ है, मुस्बत हुआ है। पाकिस्तान में पहली दफा बरामदात जो आपको बाहर से पैसा आता है, पाकिस्तान की तारीख में इतना पैसा नहीं आया जितना पिछले माह आया है। पाकिस्तान की तारीख में इतनी गाड़ियां पाकिस्तान की अवाम ने नहीं खरीदी जितनी कि पिछले 2 माह में खरीदी हैं। पाकिस्तान की तारीख में इतनी मोटरसाइकिलें नहीं बिकी जितनी इन 2 माह में बिकी हैं। पाकिस्तान की तारीख में, ये देखें, ये कोई मामूली बातें नहीं हैं। आखिर पैसा है तो ये चीज़ें लोग ले रहे हैं, प्रोग्रेस हो रहा है। सीमेंट, आपने इस कोरोना के अंदर भी आपने देखा कि कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को खोला, बहुत बड़ा एक फैसला था, बहादुराना फैसला था। दुनिया लॉकडाउन की तरफ जा रही थी और खान साहब खोलने की तरफ जा रहे थे, तो अल्लाह ने बहुत पर्दा रखा हमारा। पूरी दुनिया में आप देखें तरक्की याफ्ता ममालिक जहाँ पे सेहत पे सबसे ज़्यादा पैसा लगाया, तालीम पे लगाते हैं वो लोग, इंसानों पे लगाते हैं। लेकिन जब ये पेंडेमिक आया, कोरोना वायरस आया, तो अमेरिका में भी अमेरिकन्स ने सुपर स्टोर्स लूटे, डबरोटी के लिए लूटे, टिश्यू पेपर के लिए लूटे, यूरोप में लूटे, यूके में लूटे। पाकिस्तान जो एक गरीब मुल्क है, जो मकरूज मुल्क है, जहाँ पे सिस्टम नहीं है, हम इंसाफ की जंग लड़ रहे हैं 23 साल से, वहाँ पर आपको फख्र होना चाहिए पाकिस्तानी होने पर कि पाकिस्तान में एक छोटी सी परचून की दुकान भी किसी ने नहीं लूटी। ये कितनी बड़ी बात है। हमने और आपने इसार का जज्बा दिखाया, हमने और आपने लोगों की मदद की। खुद जाके लोगों ने राशन तकसीम किया, दवाइयाँ दी, मदद की, लोगों की पैसे दिए। तो मैं समझता हूँ ये हमारी बहुत सी खूबसूरतियाँ हैं। इस मुल्क में बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो दुनिया में नहीं हैं। हम वो वाहिद मुल्क हैं 57 मुल्कों में मुसलमानों के जो नज़रिए पे बने हुए मुल्क हैं, 2 कौमी नज़रिए पे बने हुए मुल्क, मुसलमानों के लिए हासिल किया हुआ मुल्क। इलामा इकबाल का वो ख्वाब जो पाकिस्तान बना, जो कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने बनाया, तो उस पाकिस्तान की तरफ इंशाल्लाह जा रहे हैं। आपको बताऊं कि इंशाल्लाह इसको इस्लामी फलाई रियासत बनाएंगे, पूरी कोशिश हो रही है। जिस तरह भी चौधरी इजाज साहब ने बताया कि बहुत से इस्लामिक ममालिक पे प्रेशर है, इक्तिसादियात ख़त्म है, वो मान रहे हैं इसराइल को मुल्क, और पाकिस्तान जो एक नज़रिए पे बना हुआ मुल्क है, आप कैसे सोच सकते हो कि वो एक काबिज को, जो मुसलमानों की सरजमीन पे काबिज हो, जो हमारे बच्चों को मार रहा हो, हमारी औरतों की इज्जतें तबाह कर रहा हो, क्या हम उस काबिज को जो मुसलमानों की फ़लस्तीन की ज़मीन पर काबिज है उसको मान सकते हैं?
عمران خان صاحب نے، وزیر اعظم نے حق ادا کیا تمام 22 کروڑ پاکستانیوں کا، جب انہوں نے کہا کہ میں سوچ بھی نہیں سکتا کہ میں اسرائیل کو مانوں گا۔ تو انشاءاللہ جس نظریے پہ ملک بنا ہے اسلام کے نام پر، ہم انشاءاللہ وہ تمام خوبیاں جو ہمارے اسلام کی خوبصورتیاں ہیں، انشاءاللہ اس کی طرف اپنے ملک کو لے کے آ رہے ہیں، اور پوری کوشش کر رہے ہیں کہ اس کرپٹ نظام کو تبدیل کریں، اس مافیا کو جو ہر سطح پہ بیٹھا ہوا ہے اس کا مقابلہ کریں گے، کر رہے ہیں۔ آپ بہادر لوگوں کی، عمران خان کے سپاہیوں، آپ نے جس طرح شارٹ نوٹس پہ جلسہ کر کے دکھایا ہے، یہ بہت بڑا سبق آپ نے دکھایا ہے ان اپوزیشن کو، ان لوگوں کو جو ان پہ تبصرے کرتے تھے۔ تو انشاءاللہ چودھری اجاز صاحب جو ایک سیاسی بصیرت رکھتے ہیں، سرمایہ ہے ہماری اس جماعت کا، ہمیشہ حوصلہ اور ہمت دیتے رہے ہیں، تنظیم سازی کا تجربہ ہے۔ آپ یقین کریں جنوبی پنجاب میں یہ پہلے نکلے، انہوں نے وہاں سے تنظیم شروع کی، پنجاب کے اندر آئے، الیکشن لڑا 2013 کا، صوبائی صدر بنے یہ۔ میں ان کو سلام پیش کرتا ہوں، ان کی تمام جماعت کو، تمام لوگوں کو، آپ تمام عہدیداروں کو، اور انشاءاللہ آپ کو یہ یقین دلاتا ہوں کہ 2023 میں پھر انشاءاللہ پاکستان تحریک انصاف آئے گی اور اس ریفارمز کو انشاءاللہ ہم کمپلیٹ کریں گے۔ بہت شکریہ۔ حضرات دعا کریں گے ندیم باز بھٹی شہید کے حوالے سے اور دیگر جو مرحومین ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد و علی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یا الہ العالمین، ہمارے شہید کی اس شہادت کو قبول فرما، اس قربانی کو قبول فرما۔ یا الہ العالمین، ان کے درجات تو پہلے سے ہی بہت بلند ہیں، آپ نے فرمایا کہ شہید کا درجہ بہترین اور بلند ترین ہے، یا اللہ ان کے درجات میں بلندی عطا فرما۔ یا اللہ ہمارے بھائیوں کے کوئی عزیز و اقارب جو ان دنوں وفات پائے ہیں، یا اللہ تو اپنے فضل و کرم کے سائے کے اندر لے لے، انہیں آخرت کی ساری نعمتیں عطا فرما، اور ان کی قبروں کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا دے، ان کو اعلیٰ علیین کے اندر جگہ عطا فرما۔ یا اللہ ہم اپنے ملک کے لیے اور اپنی حکومت کے لیے، تو انسانوں کو دلوں کو پھیر سکتا ہے، تو انسانوں کے دلوں کے اندر حقیقت کا راز کھول سکتا ہے۔ یا الہ العالمین، ہمارے پاکستان کے پاکستانیوں کے دلوں کے اندر یہ واضح کر دے کہ عمران خان پوری جرأت کے ساتھ اس قوم اور اس ملک کو لے کر آگے بڑھ رہے ہیں۔ یا اللہ تو ان کی مدد فرما۔ آمین۔ یا الہ العالمین، وہ بصیرت عطا فرما کہ جس کی ایک حکمران کو ضرورت ہوتی ہے۔ یا الہ العالمین، تو اپنا فضل و کرم فرما اس ملک کے اندر اس وبا سے، جس طرح پہلے اپنا فضل و کرم کیا ہے، یا اللہ اس فضل و کرم کو جاری رکھ۔ آمین۔ یا الہ العالمین، ہم سب کو کہ جو دعویٰ لے کے اٹھے ہیں کہ ایک اسلامی فلاحی ریاست بنانا چاہتے ہیں، یا اللہ تو ہم اس کے مترادف کر دے، اس کے لیے تیار کر دے، ہم خود بھی ذہنی طور پہ اس کے لیے تیار ہوں، اور اپنے اوپر بھی دیانت اور امانت کی پابندیاں لگا لیں، اور اس قوم کی قیادت کا حق ادا کریں۔ آمین۔ صلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہ محمد و آلہ و صحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔